Hello students, welcome to DNT English classes. Well, today we are into the session of conversation. Well, I'll tell you something about what is conversation and why conversation is important for our speaking. You know, conversation means talking with number of people. As we know, throughout the day we keep on talking only. But this conversation will help us to talk something in a particular way, with our proper theme and matter. So this conversation definitely help us to improve our fluency in speaking. If anyone would like to improve English, if anyone is thinking of learning how to speak better English, so for this reason, conversation is very important. Conversation means speaking, speaking and speaking. Without speaking, we will not be fluent. Without speaking, the perfection in the speech will never come. So, it is very essential to open our mouth and to speak as much as we can. And the conversations and dialogues help us to improve our speaking. Because in conversation, we get different kind of situational idea which help us to use whenever that particular moment or the situation comes. So it is very important to practice number of conversation. Well, dear, today's session is, as I told you, conversation. So our today's conversation is how you can improve English. आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. फॉर दिस वी हैव अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. ये कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है और कन्वर्सेशन का थीम है, द टाइटल है हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश. हम अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी बिकम फ्लुएंट इन आवर स्पीकिंग. सो दिस इज ओवरऑल we are going to learn in this conversation. So we have only two characters. As you can see here on the board, we have two characters. The first one is student and the next speaker is a teacher. This conversation starts with the dialogue of student. Student says first, I want to improve my English, but I am unable to do it. विद्यार्थी कहता है टीचर से कि मैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं बट मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं. एज ही सेज दैट आई एम अनएबल टू डू इट. टीचर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? टीचर इज आस्किंग. सेकेंड डायलॉग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो बट क्या प्रॉब्लम आता है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस? स्टूडेंट tells, I hesitate while speaking. मैं बात करने टाइम में हिचकिचाता हूं. Sentences do not come in my mind and I just fall flat. स्टूडेंट ने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो हेजिटेट कर जाता हूं और फिर सेंटेंसेस दिमाग में नहीं बन पाता है फटाफट, और मैं जो बात करने का प्रयास करता हूं उसमें फेल हो जाता हूं. यू कैन सी हियर इज फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट इज अ फ्रेज, मीन्स बिकमिंग फेल हो जाना. किसी एंडेवर में, किसी कार्य में, किसी काम में फेल हो जाना. तो what he was trying here, he was trying to speak but he just falls flat. Again, I'll repeat the dialogue of student. I hesitate while speaking. Sentences do not come in my mind and I just fall flat. सब मेहनत बेकार हो जाता है हमारा. Now the teacher is asking, do you practice grammar? क्या तुम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हो? Students, yeah, I practice now and then. विद्यार्थी ने कहा कि हाँ, प्रैक्टिस तो करते हैं बट कभी कभी. Now and then again is a phrase that means sometimes, not regularly. So
ही इज टेलिंग दैट आई प्रैक्टिस नाउ एंड देन, मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता हूं. नेक्स्ट डायलॉग इज ऑफ टीचर. यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली एज इट विल हेल्प यू इन स्पीकिंग. टीचर कहे कि तुम्हें नाउ एंड देन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा स्पीकिंग, तुम्हें स्पीकिंग का डेली प्रैक्टिस करना होगा. जैसे कि स्पीकिंग ये डेली प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन स्पीकिंग. एवरीडे का प्रैक्टिस तुम्हें इंग्लिश बोलने में मदद कर सकता है. नाउ स्टूडेंट, हाउ विल इट हेल्प मी. अच्छा, ये मुझे कैसे मदद कर सकता है? हाउ कैन आई बी बेनिफिशियल. टीचर, वेल, sentences will automatically come in your mind, and you know grammar, as grammar will help your mind construct sentences. As a result, you will be able to speak fluently. विद्यार्थी ने जब पूछा कि सर अगर मैं ग्रामर की प्रैक्टिस करता हूं तो मैं अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करूंगा, हाउ कैन ग्रामर हेल्प मी टू स्पीक फ्लुएंटली. टीचर कहें कि सेंटेंसेस विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड. देखिए, जब हम बात करना चाहते हैं तो हम सेंटेंसेस बना करके बात करते हैं, और सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ग्रामर, बिकॉज विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस वी वोंट बी एबल टू फ्रेम द लॉजिकल सेंटेंसेस. So it's very obvious, it's natural that grammar help us in making sentences, framing sentences. तो टीचर ने कहा कि sentences will automatically come to your mind, and grammar, as grammar will help your mind construct sentences, and as a result you will be able to speak fluently. और इसका नतीजा क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हम फटाफट सेंटेंस बना सकते हैं, और जैसे ही हम फटाफट अगर सेंटेंस बना सकते हैं तो इट्स वेरी इजी कि हम फटाफट बोलेंगे. वी विल बी वेरी क्विकर इन स्पीक, वी विल बी वेरी फ्लुएंट इन स्पीक. सो दिस इज हाउ द ग्रामर हेल्प अस इन सच अ वे. नाउ student, again the questions from a student. Student is not satisfied, he's not contented what he has been told. Student again asking, my friend practices grammar daily, still he is unable to speak fluently. टीचर ने कहा, स्टूडेंट पूछ रहे हैं टीचर से कि सर मेरा फ्रेंड ग्रामर का प्रैक्टिस तो करता है, बट वो फिर भी स्टिल ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, फिर भी वो अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता है. सर व्हाट इज द रीजन, क्या है रीजन सर? नाउ द नेक्स्ट डायलॉग इज ऑफ टीचर. नाउ टीचर सेज, only having the knowledge of grammar is not enough. Well, we need to practice speaking daily to master the language. उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रामर की नॉलेज काफी नहीं होता है. Only having the knowledge of grammar is not enough. What we need to do, he tells that we need to practice speaking daily to master English language. अगर इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करना है, इंप्रूव करना है, तो स्पीकिंग का पार्ट मुझे बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन करना होगा. वी हैव टू स्पीक एंड स्पीक अ लॉट. वेल, टीचर इज आस्किंग अगेन एज हाउ मेनी आवर्स डज ही स्पीक. टीचर पूछते हैं कि ओके बताओ कि तुम्हारा फ्रेंड ग्रामर पढ़ता है, बोल नहीं पाता है, वो बोलने का कितना घंटा प्रैक्टिस करता है? हाउ मेनी आवर्स डज ही स्पीक? स्टूडेंट, ही डज नॉट स्पीक मच. विद्यार्थी ने कहा कि सर मेरा फ्रेंड ज्यादा बात नहीं करता है, ही डज नॉट स्पीक मच. नाउ द टीचर, अब टीचर देखते हैं कि किस तरह से सजेशन करते हैं स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर? टीचर ने कहा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप कैसे कामना कर सकते हैं कि आपका दोस्त एक बहुत अच्छा स्पीकर बन जाएगा? आई एडवाइज बोथ ऑफ यू. टीचर ने कहा कि मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश वेरी ऑफन. टीचर सजेस्टेड बोथ ऑफ देम दैट आई एडवाइज बोथ ऑफ यू टू स्पीक इंग्लिश वेरी ऑफन. बी श्योर सून यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर. As you know, English is a very easy language and it can be learned. What we need, you just need to put your sincere efforts.
उन्होंने कहा कि इंग्लिश की प्रैक्टिस, स्पीकिंग की प्रैक्टिस वेरी ऑफन, रेगुलर होना चाहिए, प्रायः होना चाहिए। और अगर रेगुलर प्रैक्टिस हम करते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल दैट वी आर गोइंग टू बी फ्लुएंट, हम लोग फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे, देयर इज नो डाउट। सिर्फ एक काम उन्होंने सिंसियरली से करने के लिए कहा, और उन्होंने क्या कहा कि यू जस्ट नीड टू पुट योर सिंसियर एफर्ट। आई मीन देयर शुड बी एन ऑनेस्ट एफर्ट। आपको ईमानदारी से काम करना होगा। एक यू नो एसेंशियल एफर्ट which is needed for improving English is to be put। तो टीचर ने कहा कि आपको ऐसा करें and you will get the benefit। Now the student, thank you for valuable suggestion sir। इस सजेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। and I'm sure sir that I will act upon your advice। मैं आपके सलाह के अनुसार काम करूंगा and I really wish to be a fluent speaker। So that's all about this conversation। इस कन्वर्सेशन में हमने देखा कि स्टूडेंट तरह तरह के क्वेश्चंस और कंसर्न्स कर रहे थे टीचर को कि किस तरह से इंग्लिश को, स्पीकिंग को, कन्वर्सेशन को इम्प्रूव किया जाए। और टीचर ने भी, आपने देखा कि ही हैज़ गिवन द डिफरेंट काइंड ऑफ सजेशंस ऑन डिफरेंट occasions for the different questions। he has the different answers। so ultimately what do we saw, हमने क्या, what do we see, हम क्या देखते हैं कि if you really wish to improve English, if you want to be a fluent speaker, the only thing and the most important thing you need to do is to practice daily। क्या प्रैक्टिस करेंगे? This is a secondary matter। First we have to speak, first we have to take words, then we have to take items and phrases, different phrases, and then we have to pick the sentences। हमें छोटे वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस से बोलना शुरू करना होगा, और फिर जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना जल्दी हम इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट इन दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई विश definitely you will subscribe my channel, you will like the video, you will comment, and if you are a regular viewers of my video, you will like and comment and definitely share। Wish you, see you in the next video। Bye।